Hi guys, this is lecture number 11. In this lecture I am going to solve a problem. So this is the given problem. So here the same problem is also available in another set of notes. Okay. So here in this notes the same problem is given clearly and the diagram is also clear compared to this notes. Here the question and the diagrams are very clear. So here to read out the given question I will refer these notes. To read out the question and to refer the diagram I will refer these notes, and for solution I am going to refer these notes. I am going to refer these notes for solution, and to write the given and to refer the diagram I will refer these notes, because here the question is also clearly visible and the diagram is also clear. Okay. So now I will read out the given problem. In an epicyclic gate train of the sun and planet type shown in the figure. So here they have given the epicyclic gate train, and this epicyclic gate train is of sun and planet type, because here gear B acts as a sun and remaining gears, these remaining gears C acts as planet. It means these gears, gear C rotates around gear B. For this reason this type of gate train we call it as a sun and planet type. Next, the pitch circle diameter of the internally toothed ring. So here internally toothed ring means internal gear. Okay, and sometimes internal gear is also we also call it as simply ring. Internal gear also we call simply as ring. So here the pitch circle diameter of the internally toothed ring. So here the internal ring is gear D. Here the internal gear is gear D. Internally toothed ring is to be 224 mm and the module 4 mm. So here the pitch circle diameter of internally toothed ring is given 224. So here the pitch circle diameter of this gear D is given as 224, and the module of this gear D is given as 4 mm. Internally toothed ring means internal gear. So here the gear D is internal gear. The pitch circle diameter, the diameter of this circle is given as 224, and the module of this gear D is 4 mm. Next, when the ring D is stationary, it means when this gear D is stationary, when gear D is fixed, it means ND is equal to 0. The spider A, here the spider A means arm only. Spider means arm only. So this is the arm. This star shape is nothing but the arm. When the arm is in the star shape, so that type of arm we call it as a spider. So here I have written spider is nothing but arm only. When the arm is in star shape, here you can see that this arm is in the star shape. So this type of arm we call it as a spider. So here this arm is taken it as spider A. Okay, this spider A which carries 3 planet wheels C of equal size. So here this spider carries 3 planet wheels. So these 3 gears which are named as C, these 3 gears are rotating around gear B. For that reason these 3 gears we call as a planet wheels or planet gears, and these planet wheels are carried by this arm, and these planet wheels or these gears C are carried by this spider A or arm A. Okay, and here they are given that the spider A which carries 3 planet wheels C of equal size. So these gears C are of equal size. These 3 gears planet wheels are having the same size. It means
all three gears are having the equal number of teeth. Okay. The spider which carries 3 planet wheels C of equal size is to make one revolution in the same sense as the sun wheel for every 5 revolution of the driving spindle carrying the sun wheel B. So here what is given here means the spider A which carries 3 planet wheels makes one revolution. This spider A which carries these 3 planet wheels makes one revolution in the same sense which is in the same sense as that of gear B. Okay, it means this spider and gear B are rotating in the same direction, but here they have given the speed of spindle. Spindle means shaft. The speed of spindle on which the gear B is mounted. Here in the question they have given that driving spindle carrying the sun wheel B. So here they have given in the question the speed of spindle, that is shaft, on which gear B is mounted. It means the speed of spindle or the speed of shaft and gear B are same. The speed of this spindle and gear B are same. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पे स्पिंडल है मतलब शाफ्ट है, ये शाफ्ट पे गियर बी माउंटेड है, इसका मतलब ये शाफ्ट का और गियर बी का स्पीड सेम रहेगा. ठीक है. और यहाँ पे स्पिंडल का स्पीड कितना दिया हुआ है यहाँ पे दिए हुए, एज द sun wheel B for every 5 revolution of the driving spindle carrying the sun wheel B. Here they have given the speed of this spindle, that is 5 revolution, and here as I said the speed of the spindle and wheel B will be same because this wheel B is mounted on the spindle. So here it means the speed of gear B is 5 revolution. Okay, NB is equal to 5. But here in the question they have given that this spider and gear B are rotating in the same sense. Same sense means in the same direction. Here I will read out that sentence. The spider which carries 3 planet wheels C of equal size is to make one revolution. So this is speed of spider A. One revolution in the same sense as the wheel B. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, गियर व्हील कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है ना, स्पाइडर भी वही डायरेक्शन में घूम रहा है. एंड हियर दे हैव नॉट गिवन द डायरेक्शन ऑफ व्हील बी और द डायरेक्शन ऑफ स्पाइडर. यहाँ पे डायरेक्शन बी का भी नहीं दिया हुआ है, स्पाइडर का भी नहीं दिया है. मतलब इसका मतलब आप दोनों को कौन सा भी डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं. यू मे टेक एंटी क्लॉकवाइज फॉर बोथ, यू मे टेक anti-clockwise direction for both, or you can take clockwise direction for both means for gear B and spider A. यहाँ पे क्वेश्चन में किसी का भी डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है, स्पाइडर और व्हील बी दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं करके मेंशन किया हुआ है. तो मगर यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहे वो मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में. तो इसका मतलब आप दोनों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं. बट यूजुअली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब डायरेक्शन नहीं देता है क्वेश्चन में तो हम एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं. जब क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन नहीं करता है किसी गियर का या किसी पार्ट का, तो हम एंटी क्लॉकवाइज ही अज्यूम करते हैं, मतलब प्लस करके ही लेते हैं. ओके, सो अभी देखो, सो इफ दिस इज द कंडीशन, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, determine the number of suitable teeth on all the wheels. So here they have not given the number of teeth of any one of the gears, so you have to find out the number of teeth of all the gears. Determine the suitable number of teeth on all wheels. So here you have to find out the number of teeth on all the wheels. So here one more important thing. So here in the diagram, to make you confuse here, gear D, for gear D they have drawn 2 circles. यहाँ पे क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए गियर डी के लिए 2 सर्कल्स निकाले हैं. ये दोनों सर्कल गियर डी के ही है. यहाँ पे यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज हियर.
these two circle are nothing but gear D only. ये दोनों सर्कल जो है नी gear D ही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सर्कल के बीच में सिर्फ D करके लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों सर्कल है नी gear D है, कंफ्यूज मत करो आप, ठीक है. So now I will write down the given first. So once again I will read out the question to write the given. In an epicyclic gay train of the sun and planet type shown in the figure, the pitch circle diameter of internally toothed ring is to be 224 and module 4 mm. So यहाँ पे gear D का pitch circle diameter मतलब ये वाले डी गियर के सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है और डी का मॉड्यूल दिया हुआ है. दैट आई विल राइट हियर. मैं पहले बोल चुका हूँ, सॉल्यूशन के लिए ये नोट्स रेफर कर रहा हूँ. सो हियर गिवन पिच सर्कल डायमीटर ऑफ डी दैट इज इक्वल टू डी डी. सो पिच सर्कल डायमीटर आई हैव टेकन इट एज डी डी दैट इज इक्वल टू 224 mm and module of wheel D that is MD is equal to 4 mm. And next, when the ring D is stationary, मैं पहले बता चुका हूँ, रिंग बोले तो इंटरनल गियर, ओके. जहाँ पे भी आप आगे कुछ और प्रॉब्लम्स में रिंग करके कहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो उसको आप इंटरनल गियर करके ही कंसिडर करना है. सो रिंग when the ring D is stationary, it means ND is equal to 0. Next, the spider A, which carries 3 planet wheels C of equal size, is to make 1 revolution in the same sense as the sun wheel B for every 5 revolution. यहाँ पे क्या बोल रहे हो, अगर सन व्हील B 5 रेवोल्यूशन किया तो स्पाइडर A 1 रेवोल्यूशन किएगा, मतलब NA is equal to 1 and NB is equal to 5. एंड हियर एज आई सेड यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो, स्पाइडर और व्हील बी दोनों एक ही सेंस में, सेम सेंस में घूम रहे हैं, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है. तो क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं दोनों को, नहीं तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं. मगर यूजुअली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में बोले तो हम एंटी क्लॉकवाइज ही कंसिडर करते हैं, मतलब दोनों की वैल्यूज प्लस में ही लेते हैं. तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं उसको, NA इज इक्वल टू +1 RPM. यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटेशन का यूनिट भी मेंशन नहीं किया हुआ है, 1 रेवोल्यूशन करके बोले हैं सिर्फ. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो 5 रेवोल्यूशन करके दिए हैं. यहाँ पे दोनों के स्पीड का यूनिट मेंशन नहीं किया, यूनिट मतलब RPM में है या RPS में है या RPH में, वो कुछ नहीं मेंशन किया. बट हम यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं, RPM है करके अज्यूम करते हैं, तो इसलिए NA इज इक्वल टू +1 RPM, NB इज इक्वल टू 5 RPM. ओके. एंड नाउ नंबर ऑफ टीथ, पहले हम नंबर ऑफ टीथ व्हील डी के फाइंड करेंगे, क्यों बोले तो व्हील डी का पिच सर्कल डायमीटर दिया हुआ है और मॉड्यूल दिया हुआ है, तो वो 2 पैरामीटर्स को लेकर हम नंबर ऑफ टीथ इजीली फाइंड कर सकते हैं. वी हैव मॉड्यूल इज इक्वल टू, फार्मूला यहाँ पे जनरल फार्मूला ऑफ मॉड्यूल इज M इज इक्वल टू, मैं पहले प्रीवियस वीडियोज में डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल बताया हूँ. मॉड्यूल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल टू द नंबर ऑफ टीथ ऑफ दैट सर्कल. दिस इज व्हाट द जनरल फार्मूला फॉर मॉड्यूल. द जनरल फार्मूला फॉर मॉड्यूल इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल टू द नंबर ऑफ टीथ ऑफ दैट गियर. ओके, ये जनरल फार्मूला है मॉड्यूल का. ये फार्मूला यूज करके नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील डी फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे देखो मॉड्यूल इज इक्वल टू MD, दिस इज मॉड्यूल ऑफ D इज इक्वल टू डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर D डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन दैट व्हील गियर D. ओके. नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील D चाहिए. सो TD इज इक्वल टू DD बाय MD को इधर ले आओ, DD बाय MD. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. वी नो द वैल्यू ऑफ DD that is 224, we know the value of MD that is 4, so substitute करके simplify करो, you will get TD is equal to 56. It means gear D is having 56 teeth. So now
आपको एक गियर का आपको नंबर ऑफ टीथ मिल गया। यहाँ पे आपको गियर डी का नंबर ऑफ टीथ मालूम होगा। अभी आपको गियर सी और गियर बी के नंबर ऑफ टीथ फाइंड करना है। मतलब मगर यहाँ पे हम ये डायग्राम को यूज़ नहीं कर सकते, क्यों बोले तो दो अननोन वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। अगर एक ही अननोन वैल्यू रहता था तो ये गियर ट्रेन में सिर्फ एक ही गियर का नंबर ऑफ टीथ मालूम नहीं रहता था, तो हम ये डायग्राम को यूज़ करके रेडियस का फार्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ टीथ फाइंड कर सकते थे। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ आपको गियर डी का नंबर ऑफ टीथ मालूम है, मतलब एक ही गियर का नंबर ऑफ टीथ मालूम हुआ है। मतलब यहाँ पे दो गियर्स के नंबर ऑफ टीथ मालूम नहीं है, तो आप ये डायग्राम यूज़ नहीं कर सकते और रेडियस का फार्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते। मगर और एक मेथड क्या है, एज यूजुअल हमारा मेथड टैबुलर कॉलम बना के नंबर ऑफ टीथ फाइंड कर सकते हैं। टैबुलर कॉलम बना के नंबर ऑफ टीथ फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ वी शैल प्रिपेयर द टैबुलर कॉलम। यहाँ पे पहले टैबुलर कॉलम बनाएंगे। अगेन सीरियल नंबर, कंडीशन ऑफ पोर्शन, रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। सो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है आपको डायग्राम को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो गियर डी 1, ओके, गियर बी 2, दिस स्पाइडर 3, ओके। बट यहाँ पे देखो 3 गियर्स है, 3 प्लैनेट व्हील्स है, मगर सभी के साइज सेम है, मतलब सभी के नंबर ऑफ टीथ सेम रहेंगे। तो ये सभी प्लैनेट व्हील्स को हम एक ही गियर कंसिडर करेंगे, मतलब एक ही कॉलम कंसिडर करेंगे, ओके। मतलब कितने कॉलम हो गए अभी, गियर डी 1, गियर बी 2, दिस स्पाइडर 3 एंड दीज प्लैनेट व्हील्स, सभी प्लैनेट व्हील्स मिला के एक, सो 4 टोटल 4 सब कॉलम्स आपको बनाना है यहाँ पे रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स में। तो 1 2 3 4 सब कॉलम हो गए। तो इन द फर्स्ट सब कॉलम अगेन यू हैव टू राइट द आर्म मीन्स हियर दे हैव गिवन इट एज स्पाइडर, सो फॉर दैट रीजन यू हैव टू राइट स्पाइडर हियर, ओके। यहाँ पे आर्म फर्स्ट कॉलम में आर्म लिखते हैं ना, तो आर्म ही लिखना। यहाँ पे स्पाइडर करके लिए हैं क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको स्पाइडर करके लिखो, स्पाइडर ए। नेक्स्ट कॉलम में कौन सा गियर लिखना है बोले तो आपको डायग्राम रेफर करना पड़ेगा। डायग्राम में आपको ये देखना पड़ेगा कि इंटरनल गियर है या नहीं। यस, ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरनल गियर डी है। तो जब ये गियर ट्रेन में इंटरनल गियर है बोले तो आपको आर्म के बाद और या स्पाइडर के बाद लार्जर गियर को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायग्राम को, यहाँ पे आप हमको सभी गियर्स के नंबर ऑफ टीथ मालूम नहीं है, मगर ये डायग्राम देखने के बाद हम ये गेस कर सकते हैं कि गियर डी लार्जर है। यहाँ पे आपको कौन सा गियर लार्जर है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टीथ आप गेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमको गियर बी का नंबर ऑफ टीथ मालूम नहीं है, गियर सी के नंबर ऑफ टीथ मालूम नहीं है। मगर ये डायग्राम देख के हम ये गेस कर सकते हैं कि गियर डी इज लार्जर। सो आफ्टर स्पाइडर यू राइट गियर डी बिकॉज दैट गियर डी इज द लार्जर गियर इन द गियर ट्रेन। नेक्स्ट आफ्टर गियर डी के बाद कौन सा गियर लिखना है बोले तो आपको गियर डी किसके साथ मैच हो रहा है उसको नेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो गियर डी किसके साथ मैच हो रहा है, गियर सी के साथ मैच हो रहा है। 3 गियर सी के साथ मैच हो रहा है। गियर डी है ना, ये तीनों गियर सी के साथ मैच हो रहा है, मगर हम सभी गियर 3 गियर सी को हम एक ही कॉलम बना रहे हैं। ये तीनों गियर्स के लिए, ये तीनों जो प्लैनेट गियर्स हैं गियर सी को हम एक ही कॉलम बनाएंगे, क्योंकि तीनों का साइज सेम है, तीनों के नंबर ऑफ टीथ सेम रहेंगे। जब तीनों के नंबर ऑफ टीथ सेम रहेंगे तो स्पीड भी सेम ही रहेगा, तो इसलिए आपको एक ही कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 3 कॉलम बनाएंगे तो भी सेम ही होगा यहाँ पे, इसलिए सभी 3 गियर के बदले में हम 3 गियर को हम एक ही कॉलम बनाएंगे, दैट इज गियर सी। गियर डी यहाँ पे गियर डी देखो ये 3 गियर के साथ मैच हो रहा है, तो 3 गियर के बदले में हम एक ही गियर लिखेंगे और एक ही कॉलम बनाएंगे यहाँ पे। तो हियर आफ्टर गियर डी यू हैव टू टेक गियर सी। नेक्स्ट गियर सी किसके साथ मैच हो रहा है उसको नेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर सी, तीनों गियर सी गियर बी के साथ ही मैच हो रहा है। कौन सा भी आप गियर सी लो वो गियर बी के साथ ही मैच हो रहा है, तो गियर बी आपको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर बी नेक्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है, ओके। सो नेक्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे
अगेन जैसे आर्म आप फिक्स करते हैं, यहाँ पे स्पाइडर करके लिखे हैं, इसलिए आपको स्पाइडर ए इज फिक्स्ड एंड यहाँ पे आपको स्पाइडर फिक्स करना है। नेक्स्ट स्पाइडर के बाद कौन सा गियर है, गियर डी है, तो इसको +1 रेवोल्यूशन मोशन देना है। गियर डी मेक्स +1 रेवोल्यूशन इन काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो ये कंडीशन के हिसाब से आपको ये पूरा कॉलम लिखना है। स्पाइडर इज फिक्स बोले तो इसका स्पीड होगा 0। सो नेक्स्ट गियर डी का है, इसका स्पीड जो बेस्ड ऑन द कंडीशन +1 होगा। यहाँ पे आप +1 लिखे हैं, +1 रेवोल्यूशन करके, यही स्पीड यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट गियर सी का लिखना है आपको। गियर सी का स्पीड लिखने के लिए अगेन यू हैव टू रेफर द डायग्राम। यहाँ पे देखो गियर सी का स्पीड आप लिख रहे हैं, गियर सी किसके साथ मैच हो रहा है उसको देखना है। गियर सी देखो कौन सा भी एक गियर सी लो, मैं एक गियर सी लेता हूँ क्योंकि सभी गियर सी सेम ही है। गियर सी किसके साथ मैच हो रहा है, गियर डी के साथ भी मैच हो रहा है, गियर बी के साथ भी मैच हो रहा है। यहाँ पे देखो गियर सी डी के साथ भी मैच हो रहा है, गियर बी के साथ भी मैच हो रहा है। मगर गियर सी का स्पीड लिखने के लिए आप प्रीवियस कॉलम में गियर बी लिखे हैं या गियर डी लिखे हैं वो देखना है। यहाँ पे देखो गियर सी से पहले आप गियर डी लिखें, नो डाउट गियर सी जो है नी गियर डी के साथ भी मैच हो रहा है, गियर बी के साथ भी मैच हो रहा है, दोनों के साथ मैच हो रहा है। मगर आपको गियर सी का स्पीड लिखने के लिए है ने प्रीवियस कॉलम में कौन सा गियर लिए रहते ने उसको कंसिडर करके इसका स्पीड लिखना है। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। गियर सी का स्पीड आपको लिखना है तो गियर सी किसके साथ मैच हो रहा है देखना है। गियर सी है नहीं डी के साथ भी मैच हो रहा है, अब बी के साथ भी मैच हो रहा है। आप चाहे तो डायग्राम देख सकते हैं, गियर सी डी के साथ भी मैच हो रहा है, बी के साथ भी मैच हो रहा है। मगर गियर सी का स्पीड लिखने के लिए गियर सी से पहले कौन सा गियर लिखे रहते नहीं तो उसके साथ मैच हो रहा है करके कंसीडर करके आपको ये स्पीड लिखना है, मतलब ये लॉजिक है। ठीक है, यहाँ पे देखो गियर सी से पहले कौन सा गियर लिखे, गियर डी लिखे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये स्पीड गियर सी का स्पीड लिखने के लिए गियर सी सिर्फ डी के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करके ये स्पीड को लिखते हैं। कैसे लिखना है बोले तो यहाँ पे देखो अभी क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, गियर सी और गियर डी मैच हो रहा है करके कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी गियर सी का स्पीड लिखना है, गियर सी हम डी के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करें तो गियर डी के नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखो। ओके, नेक्स्ट आप कौन से गियर का लिख रहे हैं, गियर सी का स्पीड लिख रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में लिखो। ओके, सो नेक्स्ट इनटू गियर सी किसके साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर कर रहे हैं आप, डी के साथ, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखो ये प्लस साइन छोड़ के, या प्लस हो या माइनस हो, ये साइन छोड़ के जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 है तो ये 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। ओके, अभी नेक्स्ट ये जो प्लस साइन कैसे आया ये देखेंगे। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, गियर सी और गियर डी मैच हो रहा है करके कंसिडर कर रहे हैं। गियर सी और गियर डी कैसे मैच हो रहा है देखेंगे। यहाँ पे देखो ये गियर सी है और ये गियर डी है, ये दोनों देखो इंटरनल मैच हो रहे हैं। ये गियर डी एक्सटर्नल गियर है, गियर डी इंटरनल गियर है। जब एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल गियर मैच हो रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। यहाँ पे देखो दोनों इंटरनल मैच हो रहे हैं, गियर सी और गियर डी इंटरनल मैच हो रहे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। यहाँ पे आप गियर डी का डायरेक्शन जो है ना एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे गियर डी का प्लस लिए हैं, तो गियर डी का प्लस लिए बोले तो गियर सी का भी सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे इसको भी प्लस लेना है बिकॉज गियर सी एंड गियर डी आर मैचिंग इंटरनली। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अभी गियर बी का स्पीड लिखना है। गियर बी देखो किसके साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर बी है नहीं सी के साथ ही मैच हो रहा है। आप चाहे तो ये गियर सी लो, ये गियर सी लो, ये गियर सी लो, कौन सा भी एक गियर सी लो, तीनों एक ही है। गियर बी देखो आप यहाँ पे सी के साथ मैच हो रहा है ना, तो गियर बी सी के साथ मैच हो रहा है, तो गियर बी सी के साथ मैच हो रहा है बोले तो आपको नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर सी को न्यूमरेटर में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम में क्या देख रहे हैं, गियर बी सी के साथ मैच हो रहा है। ओके, गियर बी सी के साथ मैच हो रहा है, सो सी के नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखो। यहाँ पे आप वन सेकेंड आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। आप यहाँ पे देखो गियर बी का स्पीड लिखने के लिए
ये कॉलम में गियर बी का स्पीड लिखने के लिए आपको डायग्राम रेफर करना है। यहाँ पे आपको गियर बी किसके साथ मैच हो रहा है वो देखना है। यहाँ पे देखो गियर बी सी के साथ मैच हो रहा है। ओके, गियर बी सी के साथ मैच हो रहा है, तो गियर बी सी के साथ मैच हो रहा है। ओके, तो आप गियर बी का स्पीड लिखना है, तो नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर सी को न्यूमरेटर में लिखना है। गियर बी सी के साथ मैच हो रहा है। ओके, तो आपको गियर बी का स्पीड लिखने के लिए पहले गियर सी के नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखना है, ऊपर के साइड में, डिवाइडेड बाय आप कौन से गियर का स्पीड लिख रहे हैं, गियर बी का लिख रहे हैं, उसके नंबर ऑफ टीथ नीचे लिखो डिनोमिनेटर में। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इनटू गियर बी किसके साथ मैच हो रहा है, सी के साथ मैच हो रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड, ये प्लस साइन छोड़ के जो भी वैल्यू है यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे देखो टी डी बाय टी सी इंटू 1 है, यहाँ पे टी डी बाय टी सी इंटू 1, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किए। ओके, तो नेक्स्ट जो है ना, ये साइन माइनस साइन, ये माइनस साइन कैसे आया बोले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायग्राम को रेफर करना पड़ेगा उसके लिए। गियर बी और गियर सी एक्सटर्नल मैश हो रहा है। एक्सटर्नल मैश बोले तो गियर बी भी एक्सटर्नल गियर है, गियर सी भी एक्सटर्नल गियर है। जब दो एक्सटर्नल गियर्स मैश हो रहे हैं बोले तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। मगर यहाँ पे आप टैबुलर कॉलम में देख सकते हैं गियर सी का डायरेक्शन हम पॉजिटिव लिए हैं, गियर सी का डायरेक्शन पॉजिटिव लिए हैं। अब गियर सी और गियर बी एक्सटर्नल मैश हो रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। तो ये पॉजिटिव है बोले तो गियर सी का डायरेक्शन हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो गियर बी का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, तो इसलिए माइनस। समझ रहे हैं? यहाँ पे हम क्या यहाँ पे इसके हिसाब से, मतलब बेस्ड ऑन दिस कंडीशन गियर सी का डायरेक्शन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज इट इज प्लस। यहाँ पे देखो गियर सी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ओके, तो यहाँ पे देखो गियर बी और गियर सी दोनों एक्सटर्नल गियर्स हैं, मतलब दोनों एक्सटर्नल मैश हो रहे हैं। गियर सी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो गियर बी क्लॉकवाइज में घूमेगा, तो गियर बी का डायरेक्शन क्या हो, क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज को माइनस करके लेते हैं, तो यहाँ पे गियर बी का डायरेक्शन हो क्लॉकवाइज, तो इसलिए यहाँ पे माइनस। यहाँ पे देखो ये होगा, यहाँ पे टी सी और टी सी इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कैंसिल किए तो भी चलेगा। ठीक है, सो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस टी डी बाई टी बी इंटू 1 माइनस, यही सिंप्लीफाई करने के बाद यही लिखा हूँ, दैट इज इक्वल टू माइनस टी डी बाई टी बी इंटू 1। ओके, अभी देखो नेक्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में एज आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस केसेस, जहाँ पे +1 है फर्स्ट कंडीशन में आपको +x से रिप्लेस करना है। 0 0 +1 है +x, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x डालो। ओके, यहाँ पे भी ये यहाँ पे भी देखो सेम है, यहाँ पे यही सेम लिखा है, और यहाँ पे सिंप्लीफाई किए हैं, ये इक्वल टू यहाँ पे आया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे x डालें। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन आपको +y मोशन सभी को ऐड करना है, +y 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 +y। ओके, सो नाउ यू हैव टू ऐड नाउ टोटल मोशन में क्या करते हैं आप, सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं। सो 0 + y, सो दिस कॉलम विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ आर्म na। ओके, नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड रो x + y यहाँ पे ये कॉलम जो नहीं गियर d का स्पीड रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए nd। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो दिस प्लस दिस, टी डी बाई टी सी इंटू एक्स प्लस वाई, टी डी बाई टी सी इंटू एक्स प्लस वाई, दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स एन सी। सो मतलब स्पीड ऑफ गियर सी, एन सी इज इक्वल टू दिस वन, दिस प्लस दिस यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कॉलम जो है ना गियर सी का स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए एन सी इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड रो यहाँ पे थोड़ा ये हुआ है, सेकेंड रो थर्ड रो, ये सेकेंड रो का है, ये थर्ड रो का है। दिस प्लस दिस यहाँ पे देखो ये जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है -TD/TB इंटू एक्स प्लस वाई,
एंड दिस कॉलम विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ गियर बी, फॉर दैट रीजन दिस इज एन बी। तो आपको यहाँ पे 4 इक्वेशंस मिल गए फ्रॉम टैबुलर कॉलम 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है फ्रॉम टैबुलर कॉलम वी हैव। टैबुलर कॉलम से आपको 4 इक्वेशन मिले हैं, एन ए इज इक्वल टू प्लस वाई, एन ए इज इक्वल टू प्लस वाई, एन डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एन डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एन सी इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, एन सी इज इक्वल टू ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, एन बी इज इक्वल टू ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। सो सभी को इक्वेशंस नंबर्स दें 1 2 3 4। ओके, बट गिवन दैट, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एन ए इज इक्वल टू प्लस 1, एन डी इज इक्वल टू 0 और एन बी इज इक्वल टू 5। यहाँ ये गिवन में दिया हुआ है, आपको एक बार बता देता हूँ ये गिवन का, ये जो गिवन के वैल्यूज जो है नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हम गिवन में भी लिखे हुए हैं, वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो गिवन, यही जो है ना, यही जो है ना मैं वहाँ पे लिखा हूँ। ओके, और इसको भी नंबर्स देता हूँ मैं 5 6 7 इक्वेशन नंबर्स, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ओके, यहाँ पे आपको पहले x और y के वैल्यूज फाइंड करना है। x और y के वैल्यूज फाइंड करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन एन ए का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे एन ए का इक्वेशन टैबुलर कॉलम का जो इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करो। नेक्स्ट एन डी का ये इक्वेशन हम एन डी इज इक्वल टू 0 है नहीं, टैबुलर कॉलम एन डी के इक्वेशन साथ कंपेयर करो। नेक्स्ट ये इक्वेशन एन बी इज इक्वल टू 5 RPM है ना, तो ये इक्वेशन टैबुलर कॉलम के एन बी के इक्वेशन को कंपेयर करो, आपको नंबर ऑफ टीथ गियर बी और गियर सी के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 5, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 5, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 एंड 5 की बात कर रहे हैं हम। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 5 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकता हूँ, इसको और इसको इक्वल कर सकता हूँ, मतलब y इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू +1 RPM। आप RPM करके लिख सकते हैं, यहाँ तो छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 6, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 6। यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 6 ए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एन डी सेम है। ओके, तो इसका मतलब मैं राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकता हूँ, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कम x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमको मालूम है 1, तो y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या हुआ -1, मतलब 1 इधर आया तो -1 हो जाएगा। ये RPM आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो आपको x और y का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 7, यहाँ पे इक्वेशन 4 ए वाला है, इक्वेशन 7 ए वाला है। यहाँ पे देखो एन बी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं ये राइट हैंड साइड को मैं इक्वल बना सकता हूँ। ओके, तो मतलब दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 5 RPM। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वो इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 करके लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो अभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। माइनस TD का वैल्यू आपको मालूम है, आप ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया है स्टार्टिंग में। TD का वैल्यू यहाँ पे है, देखो यहाँ पे आप TD का वैल्यू फाइंड किए हैं, TD इज इक्वल टू 56, यही वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है। माइनस TD का वैल्यू 56, TB का वैल्यू हमको मालूम नहीं, एज इट इज़ रख दो। x का वैल्यू यहाँ पे -1 है, इंटू -1, y का वैल्यू भी प्लस y है यहाँ पे, तो y का वैल्यू भी आप यहाँ +1 है, तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करो, इक्वल टू 5। ओके, सो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको TB इज इक्वल टू 14 करके मिल जाएगा। मतलब दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी। आपको गियर बी के नंबर ऑफ टीथ मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है अभी क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील सी। व्हील सी के नंबर ऑफ टीथ फाइंड करना है। व्हील सी के नंबर ऑफ टीथ फाइंड करने के लिए मैं क्या अभी व्हाट वी शैल डू इज वी शैल मेक यूज ऑफ दिस डायग्राम।
ये डायग्राम यूज़ करके ऐसा रेडियस का ऐसा वाला इक्वेशन यूज़ करके नंबर ऑफ टीथ ऑफ व्हील सी फाइंड करेंगे. सो फॉर दैट आई विल मेक यूज़ ऑफ दिस डायग्राम. सो हियर दिस इज द गिवन डायग्राम. सो हियर फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, नहीं तो आप यहाँ से भी ऐसे भी ले सकते हैं. यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा शायद. यहाँ से देखो, यहाँ से फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, दिस एंड टू दिस एंड. सो यहाँ पे नहीं, ये जो है नी गियर का रेडियस है. यहाँ से यहाँ तक जो है नी गियर डी का रेडियस है. ये है गियर डी. ओके. सो यहाँ से यहाँ तक गियर डी का रेडियस है. तो आर डी इज इक्वल टू नहीं तो यहाँ पे और एक बार लिखता हूँ मैं. आर डी इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ गियर डी का रेडियस. अभी मैं गियर डी के रेडियस को मैं कैसे स्प्लिट करता हूँ बोले तो गियर बी का रेडियस यूज़ करता हूँ और गियर सी का रेडियस यूज़ करके स्प्लिट करता हूँ. यहाँ पे देखो गियर डी आर डी यहाँ से यहाँ तक मैं कैसे स्प्लिट करता हूँ. यहाँ से यहाँ तक जो है गियर बी का रेडियस है आर बी, मतलब ये जो है गियर बी है ये वाला, तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर बी हुआ. नेक्स्ट मतलब यहाँ तक आप पहुँच गए. नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक जो है नी ये हुआ गियर सी का रेडियस. ये वाला जो है गियर सी है, तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर सी. ओके. नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक जाना है आपको. ये वाला अगेन जो डिस्टेंस जो है ना ये गियर सी का रेडियस है. ये वाला गियर सी है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है ना गियर सी का रेडियस है. मतलब आपका डिस्टेंस ये कवर होगा यहाँ से यहाँ तक आर डी. अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक जो आर डी है इसको मैं कैसे लिखता हूँ देखो. आर बी प्लस मतलब यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक आर सी प्लस और यहाँ से यहाँ तक आर सी. तो आर डी को है मैं ऐसे मैं लिख सकता हूँ स्प्लिट करके. ओके. तो आर डी इज इक्वल टू आर बी प्लस और भी मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ टू आर सी. तो यही मैं यहाँ पे ये यूज़ करके नंबर ऑफ टीथ ऑफ व्हील सी फाइंड करता हूँ. यहाँ पे वही लिखा है देखो, आर डी इज इक्वल टू आर बी प्लस टू आर सी. ये वाला आर डी इज इक्वल टू आर बी प्लस टू आर सी. यहाँ पे भी आर डी इज इक्वल टू आर बी प्लस टू आर सी है. ओके. तो अभी यहाँ पे क्या है आपको ये रेडियस टर्म्स को नहीं नंबर ऑफ टीथ में रिप्लेस करना है. मगर यहाँ पे गियर डी का मॉड्यूल का वैल्यू दिया हुआ है. गियर डी का मॉड्यूल का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है. मतलब एम डी इज इक्वल टू 4 mm दिया हुआ है. एम डी इज इक्वल टू 4 mm दिया हुआ है. मतलब गियर डी का मॉड्यूल का वैल्यू दिया हुआ है. मतलब इसका मतलब गियर सी का मॉड्यूल का वैल्यू अलग रहेगा, गियर बी का मॉड्यूल का वैल्यू भी अलग रहेगा. तो बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं. क्या अजम्पशन करते हैं अज्यूमिंग मॉड्यूल ऑफ ऑल द व्हील्स आर सेम. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या किए हुए हैं, गियर डी का मॉड्यूल का वैल्यू दिया है दैट इज 4 mm दिए हुए हैं. ओके. इसका मतलब गियर बी का मॉड्यूल का वैल्यू अलग है, गियर सी का मॉड्यूल का वैल्यू अलग है. मगर गियर बी और गियर सी का मॉड्यूल का वैल्यू हमको पता नहीं है, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. बट जब सिर्फ गियर डी का मॉड्यूल का वैल्यू दिए हैं तो इसका मतलब हुआ कि सभी गियर्स का अलग अलग है. मगर इसका गियर बी और गियर सी का मॉड्यूल हमको मालूम नहीं है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, अजम्पशंस करते हैं. अज्यूम करते हैं. क्या अज्यूम करते हैं, अज्यूमिंग मॉड्यूल ऑफ ऑल द व्हील्स आर सेम इवन दो गियर डी का मॉड्यूल का वैल्यू अलग है, तो फिर भी हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं. अज्यूम किए तो ही आपको नंबर ऑफ टीथ ऑफ व्हील सी मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता है. आप अजम्पशन किए तो ही आपको नंबर ऑफ टीथ ऑफ व्हील सी का मिल जाता है, नहीं तो व्हील सी के नंबर ऑफ टीथ को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. सो हियर यहाँ पे वही कर रहे हैं हम, अज्यूमिंग मॉड्यूल ऑफ ऑल द व्हील्स आर सेम. सभी गियर्स का मॉड्यूल सेम करके अज्यूम करके ये रेडियस टर्म्स को है नहीं हम नंबर ऑफ टीथ में रिप्लेस करते हैं. यहाँ पे देखो वही फार्मूला, एम टी डी बाई 2
यहाँ पे आर डी है तो उसके उसके रिप्लेस में एम टी डी बाई 2 लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर बी एम टी बी बाई 2 प्लस 2 आर सी के बदले में एम टी सी बाई 2। ये मैं कैसे लिखते हैं पहले भी बता चुका हूँ। नहीं तो जब आप मॉड्यूल को सभी व्हील्स के लिए सेम करके कंसिडर कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जहाँ पे आर है वहाँ पे टी करके लिख दो, मतलब आर डी के बदले में डायरेक्ट टी डी, आर बी के बदले में डायरेक्ट टी बी, आर सी के बदले में डायरेक्ट टी सी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, सो जब मॉड्यूल सेम रहा तो ओके। सो हियर टी डी का वैल्यू 56 या ऑलरेडी आप कैलकुलेट किए यहाँ पे, वही आपको सब्स्टिट्यूट करने का। टी डी इज इक्वल टू 56 ये कैलकुलेट किए आप, यही आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। टी डी इज इक्वल टू 56, टी बी इज इक्वल टू 14, जस्ट नो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी बी हियर, ओके, दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर। नेक्स्ट इज एज इट इज, ओके, सिंप्लीफाई करो, आपको टी सी का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 21। सो दिस इज व्हाट हियर द प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड।